الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج باب نمبر 19 ہے، باب اقبال المحیض و ادبارہ، حیض کے آنے اور جانے کا بیان، کیسے پتہ چلے گا، کیا علامات ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے یہاں پر بغیر سند کے، اور بغیر سند کے جو روایت ذکر کرتے ہیں وہ عموماً معلقات ہوتی ہیں، اور ان کی سند ہوتی ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، وہ یا اس اعلیٰ جو سٹینڈرڈ ہے امام بخاری کا اس کے اوپر پوری نہیں اترتی، لیکن قابل قبول ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ ہوتا ہے، تو اس لیے امام بخاری بغیر سند کے وہ بات ذکر کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈبیا میں روئی بھیجتی، وہ روئی جو وہ حیض کے جانے کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے رکھتی تھیں، اس روئی کو بھیجتی جس میں زردی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ ان سے فرماتی جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم سفیدی دیکھو، تو جب تم سفیدی دیکھو تو سمجھو کہ اب پاکی ہو گئی ہے، اور اس سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ حیض سے پاکی۔ حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی، ان کو کسی نے بتایا کہ عورتیں آدھی رات کو چراغ منگوا کر دیکھتی ہیں کہ وہ پاک ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے صحابیات، یعنی جو عورتیں تھیں صحابیات تھیں، وہ ایسا نہیں کرتی تھیں، اور انہوں نے اس کو برا سمجھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں کافی ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو حائضہ عورت ہے، یعنی حیض کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ مختلف عورتوں کی مختلف روٹین ہوتی ہے۔ بعض خواتین جو ہے وہ حیض کا کہ خون کا ان کی جو روٹین ہے وہ صحیح ہوتی ہے، تو سفیدی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حیض ختم ہو گیا ہے، اور بعض خواتین کی روٹین خراب ہوتی ہے تو وہ پھر ایام کا حساب رکھتی ہیں، اتنے دن مجھے حیض آتا ہے، انہی دنوں کو وہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ جیسے کسی کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ حیض کے جو ان کے دن ہیں اس کے بعد وہ استحاضہ کا خون کاؤنٹ کریں گی، حیض کے دن پورے ہونے کے بعد وہ نہائیں گی اور نماز کو ادا کریں گی۔ تو مختلف عورتوں کی اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ترتیب ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جو برا سمجھا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ چیک کیا جائے کہ میں پاک ہوئی ہوں یا نہیں، یہ تکلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عموماً عورتیں ایسا اس لیے کرتی تھی کہ شاید ہم پاک ہو گئی ہوں تو ہم عشاء کی نماز ادا کر لیں، تو انہوں نے اس سے منع کیا کہ آپ عشاء کے ٹائم پر دیکھ لیں، جو ہم سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم اگر آپ پاک ہو چکی ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں، پاک نہیں ہوئی تو آپ سو جائیں، اور پھر فجر میں جا کر کے جو ہے وہ دیکھیں گی عورت، تو لیکن تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو دیکھنا ہے یہ بھی اس عورت کے لیے ہے کہ جس کو خون کا کے رکنے کا کی روٹین کا مطلب اس کی صحیح روٹین ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا خون کب رکا ہے، اور جن کو جو ہے جن کی روٹین ہی خراب ہو تو وہ ایام کا حساب رکھے گی۔
7 दिन आता है या 6 दिन आता है या 4 दिन आता है, जितने भी दिन उनको आता है, उसी दिन के हिसाब से वो अपनी तरतीब जो है जो है वो रखेंगी। अच्छा जी। अच्छा, बुखारी के अंदर ही रिवायत है कि चलें ये आगे आ रही है रिवायत, इसको हम पढ़ लें उसके बाद हम आते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश को इस्तिहाज़ा का मर्ज़ लाहक था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, तो आपने फ़रमाया ये हैज़ नहीं है बल्कि रग का खून है। लिहाज़ा जब हैज़ की आमद हो तो नमाज़ तर्क कर दो और जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज़ अदा करो। तो इससे ये पता चलता है कि जिसको इस्तिहाज़ा का मसला हो वो अ अगर तो उसको फ़र्क समझ में आता है इस्तिहाज़ा और हैज़ के खून के दरमियान, तो वो फ़र्क करेगी, ठीक है? क्योंकि इस्तिहाज़ा का खून जो होता है वो अ, उसके अंदर सुर्ख़ी होती है और हैज़ के खून गाढ़ा होता है। और जिसको फ़र्क पता नहीं चलता वो अपने दिनों का हिसाब रखेगी और उसके बाद वो नमाज़ अदा करेगी। अच्छा, इसके अंदर एक रिवायत है जो उम्मे अतिया की है, वो कहती हैं कि हम जब पाक हो जाएँ, उसके बाद अगर कोई धब्बा लग जाए, ठीक है? पीला-सा या कोई ऐसा धब्बा हो, तो हम इसको अ, तो हम इसको तो इसको हम कुछ अहमियत नहीं देते थे, ठीक है? यानी उसमें वहम में नहीं पड़ते थे। कोई धब्बा ऐसा जो यानी आपको पता है कि इस्तिहाज़ा का खून ऐसा नहीं होता, बस धब्बा-सा लग गया, ठीक है? तो वो उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। अलबत्ता अगर धब्बा ऐसा हो कि जो जो है मामूली उसमें यानी वो खून ना हो बल्कि गाढ़ा खून हो, जैसे हैज़ का खून होता है, तो उस सूरत में फिर औरत जो है वो उसे हैज़ ही समझेगी। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर वो 15 दिन से ज़्यादा आता रहे उसको ऐसा जो है हैज़ का खून, तो 15 दिन तक वो उसको हैज़ समझेगी और 15 दिन से ऊपर उसको इस्तिहाज़ा समझेगी। और जो सही बात है वो ये है कि वो अपनी रूटीन को देखेगी। उसको मैं उसकी रूटीन क्या है, ठीक है? ये बीमारी लाहक होने से पहले उसको कितने दिन हैज़ का खून आता था। अगर उसकी रूटीन शुरू से ही डिस्टर्ब है, तो वो अपने ख़ानदान की, अपनी जिसामत जैसी और अपनी उम्र जैसी जो औरतें हैं, उनको देखेगी। उनको कितने दिन आता है, उतने दिन वो उसको हैज़ शुमार करेगी और बाकी दिन उसको इस्तिहाज़ा का खून समझेगी और नमाज़ें अदा करेगी। ठीक है? तो ये 15 दिन वाली जो बात है ये कमज़ोर मालूम होती है, क्योंकि असल यही है कि वो अपनी रूटीन के ऊपर जो है वो मुकल्लफ़ है। तो ये अलबत्ता 15 दिन उसके लिए है जिसको खून की तमीज़ होती है, यानी उसको पता चलता है कि यार ये हैज़ का खून है, इस्तिहाज़ा नहीं है। उसे कन्फ़र्म पता है, ठीक है? उसको पहचान है अपने इस रूटीन की। अब उस सूरत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो उसने इंतज़ार करना है वो 15 दिन है। 15 दिन से ऊपर कोई भी नहीं कहता कि आप नमाज़ को तर्क करें। 15 दिन से ज़्यादा जो खून है वो फिर इस्तिहाज़ा का होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये क्लियर है, इसको मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मज़ीद इसको खोल लेंगे। अच्छा, अगली रिवायत है कि हाइज़ा औरत का नमाज़ की क़ज़ा अदा ना करना। ठीक है? ये जो मुसलमान औरत है, उसके ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रहमत की है कि हैज़ की हालत के अंदर उस पर नमाज़ें वो एक तो अदा नहीं करती, दूसरा उसके ऊपर उन्हें उन्हें दोहराना वाजिब नहीं है। हाँ, बाखिलाफ़ रोज़े के, रोज़े का मामला अलग है। रोज़े के अंदर उस रोज़े को दोहराना
रोज़े की कज़ा देना वाजिब है। और ये अल्लाह ताला की इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं। एक तो ये कि रोज़े नमाज़ों की निस्बत कम होते हैं, 5 नमाज़ें हैं और 5 नमाज़ें 7 दिन या कोई इससे ज़्यादा या कम, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला अमल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये आसानी फ़रमाई है। अलबत्ता माज़ी के अंदर एक गुमराह फ़िरका आया है, जिन्हें ख़वारिज कहते हैं, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग की थी। उनका ये मौक़िफ़ था कि औरत जो है वो नमाज़ों की भी कज़ा देगी, क्योंकि वो सुन्नत पर अमल नहीं करते थे, सुन्नत को कबूल नहीं करते थे अगर वो कुरान के हुक्म से ज़ायद हो। यानी कुरान में एक बात बयान नहीं हुई और वो बात हदीस में बयान हुई है, तो वो हदीस की बात को नहीं लेते थे। तो ये गुमराह तरीन लोग थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुसलमानों के हाथों उस वक़्त कत्ल हुए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई शुरू की, मुसलमानों पर कुफ़र के फ़तवे लगाए। तो ये जो गुमराह लोग थे, इनका एक नज़रिया ये था कि औरत है हाइज़ा औरत जो है, वो नमाज़ों की भी कज़ा देगी, जैसे वो रोज़ों की कज़ा देती हैं। जबकि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह तौर पर साबित है कि आपने इस बात को बयान फ़रमाया कि हाइज़ा औरत जो है वो नमाज़ों को नमाज़ छोड़ देगी। और हज़रत आयशा ने जो है जब उनसे सवाल हुआ कि फ़रमाया हज़रत मुआज़ा बयान करती हैं कि एक औरत ने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया, जब हम में से कोई हैज़ से पाक हो, तो क्या वो फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा अदा करे? हज़रत आयशा ने उससे कहा, क्या तू हरूरिया है? ये ख़ारिजियों का एक इलाका था, जहाँ से ये निकले थे हुरूरा, इस वजह से ख़वारिज को हरूरिया भी कहा जाता है। तो यानी ताज्जुब का इज़हार किया, क्या तुम उनके मतलब है ज़हन के ऊपर हो? फिर उन्होंने फ़रमाया, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हैज़ आता था और आप हमें नमाज़ का हुक्म नहीं देते थे, या फ़रमाया कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अच्छा जी, इससे जो अगला बाब है कि हाइज़ा के साथ सोना जबकि वो हैज़ के कपड़ों में हो। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं आहिस्ता से उठी और इस चादर से निकल आई। फिर मैंने अपने हैज़ के कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया? मैंने कहा, जी हाँ। तो आपने मुझे बुला लिया और अपने साथ चादर में ले लिया। ज़ैनब ने कहा, हज़रत उम्मे सलमा ने ये भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में होते और इसी हालत में उनका बोसा ले लेते थे और मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत करते थे। हुँ। तो इस हदीस से बहुत सारी बातें पता चली कि हालत हैज़ में औरत अगर अपने कपड़े पहन लेती है या अपने हैज़ के खून का के लिए जो उसने चीज़ें बाँधनी हैं, ठीक है? तो वो अगर उनको बाँध लेती है, तो उसके बाद वो अपने खाविंद के साथ लेट सकती है, खाविंद के साथ अपने जिस्म को टच कर सकती है, इसमें शरई तौर पर कोई ममानियत नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये पता चली कि अब ये जो दूसरी हदीस जो है यहाँ ये आ गया है, इससे ये भी पता चला कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ और जो मोहब्बत थी, वो भी पता चली। और इसी तरह रोज़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लेना अपनी अज़वाज मुतहहरात का, ये भी मालूम होता है इस हदीस से। इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। और ये भी पता चला कि गुस्ल जनाबत में मियाँ-बीवी इकट्ठे एक ही बर्तन में गुस्ल कर सकते हैं और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप ऐसा करते थे।
तो औरत के साथ साथ लेटने की, हाइज़ा औरत के साथ क्या जो है ना वो हुदूद है। तो उलमा कहते हैं कि उसकी एक ही हद है कि औरत और मर्द और मियाँ और बीवी को सिवाय जो ख़ास ताल्लुक़ है, यानी जमा के, वो हर किस्म का ताल्लुक़ कायम रख सकते हैं। बाकी हर तरह की उनको आज़ादी है सिवाय जमा के, जो एक वाज़े तौर पर एक एक अज़दवाजी अमल है, तो उसके अलावा वो हर किस्म का ताल्लुक़ कायम रख सकते हैं। अच्छा, इसी पर हम आज इक्तिफ़ा करते हैं, इंशाअल्लाह कल हम अगले अबवाब पढ़ेंगे, काफ़ी अहम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पाकीज़गी की ज़िंदगी अता फ़रमाए, पाकीज़गी पर मौत दे और पाकीज़गी के साथ अपनी जन्नतों में दाखिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।